اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم کیا میری السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم اور بھی تفصیل پہ جائیں گے، انا کے ساتھ میں جملے میں کس طرح سے ہم زور پیدا کر سکتے ہیں، حصر کا مفہوم پیدا کر سکتے ہیں، اختصاص پیدا کر سکتے ہیں، مختلف چیزیں آج ہم ایک ساتھ دیکھیں گے۔ کل میں تھوڑا سا جو بتایا تھا اس کا جلدی ریویژن کریں گے۔ تو جملہ اسمیہ کے اندر انا داخل ہوتی ہے اور مبتدا کو بدل کر انا کا اسم بنے گا وہ، اور بقیہ حصہ بنے گا انا کی خبر۔ اس طرح سے انا کے بعد کا اسم جو ہے نصبی حالت میں آ جائے، اور انا کی یہ بہنیں ہیں انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لاللہ۔ یہ ہم نے شروع کرے تھے دیکھنا۔ زید طبیب، زید معرفہ ہے، طبیب نکرہ ہے، اس لیے جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ انا جب داخل ہوگا زید جو مبتدا ہے وہ تبدیل ہو کر نصب میں آئے گا اور کہلائے گا اس میں انا، اور خبر کہلائے گی خبر انا۔ اسی طرح یہاں دیکھیے الولد تھا، الولدہ ہو گیا الولدہ طبیب جدید۔ ان الولدہ یہ بن گیا مبتدا کی جگہ پہ اسم انا، اور یہ مرکب بن گیا ہے ہمارا خبر۔ تو کیا بن گیا؟ بے شک لڑکا ہے ایک نیا ڈاکٹر۔ ان عربی آتا لغت السہل، لغت السہل، بے شک عربی ہے آسان زبان۔ ان الذین عند اللہ، پھر سے یہ مرکب بن رہا ہے، انا کے بعد میں الذین آ رہا ہے، بے شک عربی جو اسکرین نہیں آ رہا سر۔ سر آئی ہے ان دینا پڑھیے، آ رہی کیا ابھی؟ نہیں سر، نہیں نہیں سر آئی ہے۔ نہیں آ رہا ہے۔ نہیں آ رہی، آ رہی ایک سیکنڈ، ہاں کوشش کر۔ تو نمبر 3 کا جملہ پڑھیے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو کیا بنے گا؟ الاسلام آ رہا ہے تو پورا جملہ کیسا بنے گا؟ بے شک دین عند اللہ، اللہ کے پاس اسلام ہے۔ تو پورا جملہ بنائیں گے، اس میں اسم و انا کیا بنے گا؟ ان الدین عند اللہ، دین اللہ کے پاس ہے اسلام۔ اس کے بعد کا جملہ بنے گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بنے گا بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کے طرف لوٹیں گے، لوٹنے والے ہیں، لوٹیں گے۔ تو اس طرح سے انا داخل ہو کر جملہ میں طاقت پیدا کرے گا۔ انا للہ، بے شک اللہ کے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ للہ کا مطلب یہ ہے وہ انا الیہ، اور انا بے شک ہم الیہ کے طرف راجعون لوٹنے والے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ میں نے جو کل جملے پڑھایا تھا آپ کو پھر سے ریپیٹ وہی ہو رہے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ سمیع الحساب، سریع الحساب، سریع کا مطلب کہ تیز۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان رحمت للہ قریب۔ تو انا داخل ہونے سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے جملوں میں طاقت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ سب کل ہم نے کرے تھے۔ تو انا کیا کرے گا بھائی؟ اپنے بعد کے آنے والے مبتدا کو
क्या बनाएगा, इसम बनाएगा और नस्ब देगा। अब जरा यहाँ गौर कीजिए, कल पढ़ चुके हैं आप, आपको याद होगा इन्नल किताबा सहलुन, इन्ना के बाद क्या आ रहा है, किताब। किताब का अगर हमने उसका जिन्स देखे तो क्या है भाई, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मुज़क्कर है। वाहिद, तो उसके बराबर बनाना है हमको, तो क्या बनेगा, इन्नाहु बनेगा। क्या बना सकते, इन्नाहु सहलुन। अब देखिए नीचे आइए, इन्नल उस्ताजा कबीर, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें किसी चीज को बदलना है तो उस्ताद का अगर हम देखेंगे, उस्ताद क्या है भाई, हुआ है, तो इन्नाहु बनेगा, ठीक है। तो एक बार अब जरा प्रैक्टिस कर लेंगे हम। इन्ना के साथ में जो जमीर लगती है तो कौन सी जमीर है, मुत्तसिल है, और इन्ना के साथ जमीर लगने के बाद क्या बनेगी, नस्बी जमीर बनेगी। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे पढ़िए, इन्नाहु गनियुन, बेशक वो है पैसे वाला। इन्नाहुम अगनियाहु, अगनियाहु का मतलब क्या हो गया, पैसे वाले। बेशक हम यानी वो सब गायब है पैसे वाले। इन्नहा तबीबतुन, इन्नहा का मतलब है इन्ना, हा ये मुअन्नस ज़मीर है, इन्नहा तबीबतुन, ठीक है। कल ये पूरा हमने पढ़ चुके हैं, आप इसको वीडियो देखिए, फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। चलिए ये देखिए, इन्ना दाखिल कर रहे हैं हम, किस पे कर रहे हैं, मौजमा, मौजमो है। अल मौजमो का मतलब है डिक्शनरी, तो बुनियादी जुमला है अल मौजमो कबीर। अल मौजमो का मतलब है डिक्शनरी है, बड़ी। तो इन्ना लगाएंगे तो क्या तब्दीली आएगी, इन्नल मौजमा कबीर। दूसरा जुमला देखिए, खाहवतु था, अल खाहवतु, खावा बोलते कॉफी। हारतुन, क्योंकि ये मुअन्नस है इसलिए मुअन्नस खबर आ रही है, लेकिन हम इन्ना दाखिल करने के बाद क्या होगा, इन्नल खाहवता हारतुन। नीचे का जुमला देखिए, सौबुन, सौब यानी जो पहनते हैं लोग, अरब लोग पहनते हैं उसको सौब बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, अल तौबु नजीफुन, ठीक है। तो क्या बनाएंगे अब हम, इन्ना तौबा नजीफुन। नीचे का जुमला देखिए, अल मस्जिदु, अल मस्जिदु को इन्ना लगाएंगे तो अल मस्जिदा जमीलुन। फिर इन्ना लगाएंगे, बिलालुन के ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा, इन्ना बिलालन ज़कीयुन। इन्ना ज़ैनबु, इन्ना ज़ैनबा तालिबतुन। फिर यासीरुन था, इन्ना लगाने से इन्ना यासिरन मिनल कुवैती, कुवैत से है, यासिर बेशक यासिर कुवैत से है। चलिए आप में से कोई पढ़ के सुनाइए और जरा एक पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए कौन पढ़ेंगे, जुमला इस्मिया में जोर पैदा करने के लिए और ताकीद पैदा करने के लिए इन्ना लगाते हैं। चलिए कोई पढ़े भाई, जल्दी पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इन्ना हाँ, एक जैदन एक से पढ़। सालिहुन, इन्ना जैदन सालिहुन, मायने भी पढ़ो, मायने भी पढ़िए। उर्दू में तर्जुमा पढ़िए भाई। बेशक जैद नेक है। जी आगे पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए, सबको एक एक चार्ट देने वाला हूँ। इन्ना जैदन लसालिहुन, बेशक हाँ, ये जैद। क्या लगा है, अब इसमें दो चीज लग गए, देखो एक तो इन्ना भी आ गया और लाम भी आ गया। हाँ पढ़िए, मायने बोलिए। बेशक जायद नेक। देखो मैंने आपसे बताया था कि खबर से पहले है लगाया करो। बेशक जैद है बहुत नेक। बहुत, बेशक जैद है बहुत नेक। हाँ चलिए नीचे का पढ़िए। इन्ना जैदन सालिहुन, हाँ बेशक मायने पढ़िए। बेशक जैद 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 है है नेक। नेक। हाँ नीचे पढ़िए।
इन्ना जायदन ला सालिहुन, बेशक हाँ। जायद है नेक। बहुत नेक। आपको वहां पे लाम बहुत दिख रहा है ना, लाम क्यों लगाए भाई हमने? उसके अच्छा। अंदर तर्जुमे में बहुत आएगा, बहुत बोलना जरूरी है। बेशक जैद है बहुत नेक। बेशक जायद है बहुत नेक। हाँ, उससे नीचे का जुमला पढ़िए। वल्लिल्लाहि इन्ना जायदन ला सालिहुन। मायने बताइए। माने तो याद नहीं पड़ रहा। अल्लाह की कसम जैद अच्छा, बहुत कैसा नेक, पहचाने? बेशक जैद बहुत नेक है। हाँ, कैसा पहचाने अल्लाह की कसम है वहां पे लिखा हुआ? वाव क्या को क्योंकि बोलो, वाव वावे खस्मी है। ये बोलो क्या है? वावे खस्मी है। और वावे खस्मी आएगा तो उसके बाद के लफ्ज के इसमें अल्लाह अंदर जेर मेरी है। बात सुनते नहीं आप, तो फिर मैं काहे को पढ़ाऊं? अच्छा। आप पढ़ाइए, मैं सुनता हूं। वावे खस्मिया आएगा तो इसम जर में जाएगा। बोलो, वावे खस्मिया तो क्या होगा? हर इसम जर में जर में जाएगा। जाएगा। हाँ, ये पहचानने का तरीका है। अल्लाह की कसम बेशक जैद है बहुत नेक, ऐसा होगा इसका मतलब। सर इधर ला का माना है आता है क्या? बहुत नेक। बहुत ला आता था, बहुत बहुत नेक। आता। ला का माना है कैसा आता? जुमले इस्मिया का मायना है होता। हाँ, चलिए अगला पढ़िए, जरा देखिए, आप गौर कीजिए बाजी। आप इन्नल मुस्लिमा सादिकुन। तो अब क्या है? मुब्तदा के बाद है लगाएंगे, उसके बाद खबर आएंगी। बोलो, बेशक मुसलमान, एक मुसलमान है सच्चा। इन्नल मुस्लिमीना, देखो इन्ना मुस्लिमैनी, अब मैनी आया तो क्या होगा भाई? दो। बेशक दो मुसलमान है दो नेक। तो पढ़ेंगे हम, बेशक दोनों मुसलमान है नेक। इन्नल मुस्लिमीना, अब जमा के लिए मीना आ रहा है। बेशक तमाम मुसलमान है सच्चे। इन्नल मुस्लिमता, इन्नल मुस्लिमता, बेशक एक मोनस मुसलमान है नेक। इन्नल मुस्लिमतैनी, बेशक दो मुस्लिम खवातीन है नेक। इन्नल मुस्लिमाती, बेशक, बोलो इन्नल मुस्लिमातिन। तो अब देखो यहाँ पे खाली मुस्लिम रहता तो मुस्लिमातिन होता था। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। अल लगने से इन्नल मुस्लिमाती सादिकातुन, मतलब बेशक तमाम मुसलमान खवातीन है ने। आपको क्या करना पड़ेगा? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो स्लाइड्स है ये लेकर आप इसके नीचे उर्दू तर्जुमा बनाइए। ये आपका होमवर्क है, अच्छा। क्योंकि मैं रोज बोलते जाऊंगा, आप रोज सुनते जाइए, आपको आने वाला नहीं है। तो आप समझे बाजी? कहाँ लगाते हैं? है इसलिए लगाते हैं कि इसमें है लिखते नहीं अरबी में, अपने तरफ से है जोड़ते हैं। है का कोई तर्जुमा इसमें नहीं है। मुब्तदा और खबर के बीच में हमारा फर्ज है लगाना। अब अपने लोग अड़ियल होते हैं, कैसा पढ़ते मैं बताता। इन्नल मुस्लिमा सादिकुन, बेशक मुसलमान ने क्या है? सच्चा है पीछे लगाते। अगर आपको दुरुस्त करना है ग्रामर, तो आपको मुब्तदा और खबर के बीच में है लगाना है, जिद्दी पना नहीं करना। कैसा पढ़ेंगे? इन्नल मुस्लिमा, बेशक मुसलमान, उसके बाद है आना जरूरी है। बेशक मुसलमान है सच्चा। ऐसा बोलने से अपना कोई नुकसान हो रहा क्या? बैंक बैलेंस खत्म हो जा रहा क्या? खर्चा हो रहा क्या पैसे? नहीं। लेकिन हम लोग जिद्दी रहते, अपनी कौम की जिद्दी। हाँ, चलिए अब आप में से कोई ये पढ़ के बताइए। अब जो पढ़े थे बाजी उन्होंने पढ़ेंगे, दूसरे पढ़ेंगे। हम पढ़ना सर? पढ़े। हाँ पढ़ो बेटे। एक नहीं पढ़ना, एक ने, बाकी सबने माइक म्यूट करेंगे। करे क्या माइक म्यूट? हाँ, इन्नल चल पढ़ बेटे, मुस्लिमून लसादिकुन, फिर से पढ़ो। बेशक
ان المسلم لصادق، ہاں بے اب شک ترجمہ ایک پڑھو۔ مسلمان ہے بہت سچا۔ بہت بہترین پڑھے آپ نے، ماشاء اللہ۔ اگلا پڑھ بیٹے۔ ان المسلمین لصادقان، بے شک دو مسلمان مرد ہیں بہت سچے۔ ماشاء اللہ۔ ان المسلمین لصادقون، بے شک سب مسلمان مرد ہیں بہت سچے۔ ماشاء اللہ۔ ان المسلمۃ لصادقۃ، بے شک مسلمان مؤنث ہے، ایک مسلمان عورت، بولو ایک ایک ہاں، مسلمان عورت۔ بے شک ایک مسلمان عورت ہے بہت سچی۔ شاباش۔ ان المسلمتین لصادقتان، بے شک دو مسلمان عورتیں ہیں بہت سچی۔ ماشاء اللہ۔ ان المسلمات لصادقات، بے شک دو مسلمان عورتیں نہیں، اب دیکھیے یہ جمع آتن آتن آتن، یا ہاں ال سوری، لگائے تو آتن، ہاں بے شک بے تمام شک تمام مسلمان مسلمان عورتیں عورتیں ہیں بہت سچی۔ ہاں یہ دیکھیے اپنے کو کبھی بھی مسلم کا چارٹ اچھا آنا، میں ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں، اپن بغیر ال کے نکیرہ لیں گے، ہاں مسلمن مسلمان مسلم مردوں کا ہے نا، مسلمانی مسلمین مسلمین، مسلمون مسلمین مسلمین، یہ ہو گیا مردوں کا نکیرہ چارٹ۔ عورتوں کا نکیرہ چارٹ بولیے، مسلمتن مسلمتن مسلمتن، مسلمتان مسلمتین مسلمتین، مسلمات مسلمات مسلمات۔ تو اللہ کا تو ایک ایک اس کا جو حرکت کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں چلیے وہاں پہ ایک آیت لکھی پڑھی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا بس اتنا ہی پڑھو، الذین، ہاں آگے پڑھیں گے، چلو ٹھیک ہے، پہلے ایک پہلے پڑھو والعصر، پہلے والعصر اس کا ترجمہ میں پورا ترجمہ وہ پورے حرکتوں کے ساتھ پڑھی، والعصر۔ والعصر قسم دیکھو ہے، یہاں پہ زیر آیا، زیر آیا نا، زیر آیا جی نا، زیر اس لیے آیا ہاں کہ واو جو ہے واو کی وجہ خصمیہ، جی واو خصمیہ، اس کا نام کیا ہے، واو خصمیہ۔ واو قسمیہ۔ ہاں تو انہیں کیا کرتا، اپنے بازو کے اسم کو جر دے دیتا ہے۔ تو یہ واو کو پہچاننے کا طریقہ ہے، اگر واو کی وجہ سے زیر آ رہا ہے تو قسم کھانا ہو گیا، قسم ہے عصر کی، عصر کے وقت کی۔ ہاں جی پڑھیے آگے۔ ان الانسان لفی خسر، بے ہاں شک پڑھیے، بے شک انسان بے شک انسان ہے ہے یقیناً بڑے خسارے خسارے میں، نہیں، یقیناً بہت بڑے بہت خسارے میں، خسارے میں، یقیناً نہیں ہاں یقیناً، بہت بہت خسارے میں۔ خسارے میں۔ یعنی ہم بتا رہے ہیں انسان بہت ہی بڑے پریشانی میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں، قسم ہے عصر کے وقت کی، بے شک انسان ہے بڑے ہی خسارے میں۔ سادی اردو میں بولو، بے یقیناً شک انسان ہے بہت پریشانیوں میں، کیونکہ انسان کے 100 اگر کام ہے تو 98 کام امتحان رہتا، بڑے پریشانی میں رہتے ہم لوگ، 2 کام آسان رہتے، باقی تمام کام مشکل ہی رہتے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جی ہاں یہاں پہ لام لانے کی وجہ کیا ہے، بہت ہی خسارے میں، یا بولنے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یقیناً نہیں ہے اس کا مطلب، کچھ ترجمے والے لکھتے یقیناً، کیوں لکھتے ان کو ہی معلوم، البتہ بھی لکھتے لوگ۔ تو کیا پڑھیں گے، بے شک انسان ہے بہت ہی خسارے، ٹھیک ہے۔ سرٹنلی ہیومن از ان بگ ٹربل، ایسا۔ چلیے آگے چلیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ اپن انا لیں گے اور انا کے ساتھ میں ضمائر جوڑے تو کیا بنے گا، انا ہو، ہوا کا کیا بنا، انا ہو، ہما کیا بنے گا، انا ہما، انا ہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم۔ کیونکہ انا جب آئے گا تو ضمیر جو ہے ہوا سے تبدیل ہو کے ہو بنے گی، اور ضمیر چونکہ کیا ہوتی ہے، مبنی ہوتی ہے، تو ہم بولیں گے یہ ضمیر متصل ہے لیکن نصبی ہے، کیونکہ انا کیا کرتا ہے، اپنے پاس والے کو نصب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، سمجھ میں آیا؟ جی سر۔ تو آگے آنے والا یہ آپ کے سامنے، آپ کو بالکل سمجھنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا آ رہا ہے، انا بھی آ رہا ہے اور انا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، انا جو ہے، انا کیا ہے بھائی، حرف توکید و نصب۔ اب انا کے بعد انا لگے گی تو انا تو یہ متصل ضمیر ہے جو کہ منفصل ہے،
अना, अना यानी हम सब, अना यानी मैं, ठीक है, अना यानी मैं, लेकिन अना की तब्दील होके क्या आएगी, इन्नी। समझ में आ गया? इन्ना और अना लिख नहीं सकते, इन्ना के साथ में या मुतकल्लिम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्नी। हम पढ़ते ना, इन्नी वजह तो वजीहा। सबको समझ में आ रहा क्या? सर मतलब सिर्फ मुत्तसिल जमीर लगेगी क्या? हाँ, मुत्तसिल। इसीलिए भाई इन्ना के साथ एक बात सुनो बेटे, अभी मैं बताया, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो कौन सी जमीर लगेगी, देखो पढ़ो यहाँ पे, हुआ हुमा हम आ गया, ये अना, अना क्या बन रहा है, या मुतकल्लिम बनता। हाँ इन्ना प्लस अना क्या बनेगा, इन्नी, ये बताया मैंने यहाँ पे, समझे? जी जी सर, हाँ, आप समझे? जी सर समझ आए। तो ये जमायर मैंने बताने की वजह ये थी कि अगर मैं यहाँ पे इन्ना लिख देता तो बेशक हम हो जाते, समझे? अब देखिए आगे, देखिए अपन, चलो पढ़ो इधर। अब फिर से पढ़ेंगे, किताब है आसान, उसको कन्वर्ट करो, मुत्तसिल जमीर में लाना है इंदा के साथ में। किताब कौन है भाई यहाँ पे, जरा मुझे बताओ। किताब हुआ है, हिया है, क्या है, बोलिए। हुआ है सर। हुआ। माशा, तो हुआ बदल के क्या बनेंगे इन्ना के साथ में, इन्ना हो। न हो। हाँ, ये सीखना है। किताब क्या बन गई यहाँ पे, इन्ना किताबा की बजाय क्या करे, इन्ना हो करे, ये प्रोनाउन आ गया ना, किताब की जगह पे क्या आ रहा, प्रोनाउन आ रहा। कौन सा प्रोनाउन आ रहा, वो बन रहा है नस्बी। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो इन्नल मक्तबतु, तो तू आ रहा है तो गोलता आ रहा है, यानी कि फेमिनिन है, तो अपना जरा देख ही नहीं जाते। यहाँ देखो क्या है भाई, क्या बन रहा है ये, दिया क्या बन रहा है, हाँ 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 बन रहा है ना। तो फिर अपन यहाँ पे देखिए क्या बनाएंगे, अपन हाँ बनाना पड़ेगा अपने को। तो इस तरह से इन्ना किताबतुन, इन्नल किताबतु, तो किताबतु की जगह पे क्या लाएंगे हम, फीमेल सिंगुलर जमीर लाएंगे, जो इन्ना के साथ में मुत्तसिल जमीर है, जो नस्बी है। ये अहम चीज है, पढ़ रहे हैं हम, इसके अंदर कोई भी। अब देखो अर्रजुलु कौन है भाई, हुआ है कि हिया है, हुआ तो हुआ क्या बनेगा, बोलो इन्ना हो, बोलो इन्ना हो, ठीक है, आज़ाबुन। अब यहाँ मरियम कौन है भाई, औरत है या मर्द है, तो हिया का क्या बनेगा, इन्नहा, बोलो इन्नहा मुदर्रिसतुन। हाँ, अभी भी किसी को नहीं समझा तो बोलो, मैं फिर समझाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कुरान में आता है, आपको समझना जरूरी है। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, रूबियतु। रूबियतु, बोलो रूबियतु मतलब रुपया, बोलो रुपया, एक रुपया है जेब में, अपने को इन्ना लगा के बनाना है, तो बोलो इन्नल रूबियता फिल जैबी। अब यहाँ बना के रूबियता पे बोलता दिख रही है, बोलता है कि वाहिद बोनस है, तो इन्नहा फिल जैबी। माशाअल्लाह। अब जरा, अब आपकी इम्तिहान है, हाँ अब आपकी इम्तिहान है। अब यहाँ क्या रहे, हाँ अलकुम्मु खसीरुन, ठीक है भाई। अब कुम्मु की जगह पे अपने को लाना है, कुम्मु क्या है भाई, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, तो क्या बनेगा, इन्ना हो कसीरुन। अब ये क्या है, जरा पढ़िए, ये क्या है, समहतु, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बोलता दिख रही है, बोलता है तो क्या बनेगा, इन्नहा। अब देखिए यहाँ पे बिलाल के बाद कौमा है, बिलाल के बाद क्या है, कौमा है, बिलाल उन्हें है बेशक, बोलो बेशक अपने को बनाना है, क्या बनाना है, बिलाल उन्हें बेशक है मुदर्रिस, कैसा बनाएंगे बताओ, हाँ, ये हाँ आता तो बिलाल बेगम हो जाते थे
माशाअल्लाह। अब यहाँ पे बनाइए, अब आपकी बारी है। क्या है भाई? तुल्लाब, तुल्लाब यानी कि तालिबों की जमा। हाँ, तो अब ये कौन है? तुल्लाब यानी जमा है, मुज़क्कर है, गायब है, तो हुन्ना तो औरतों के लिए है, तो क्या ना इन्नहुम हाँ, माशाअल्लाह। अब चलो यहाँ देखिए, अब या से अब मुनादा है, निदा मुनादा का रिश्ता है। या सुमैया तो लड़की को पुकार रहे हैं, लड़की आपके सामने है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? अंता का कुमा कुम की कुमा खुदना पढ़िए। इन्नकी इन्नकी मुतज़व्विजतुन। अब यहाँ किसको पुकार रहे? देखो अब्बास को पुकार रहे, तो अब्बास का है कि की है? इन्नका हाँ, तो आप पहले सबसे पहले आपको ये याद करना है, मेरे साथ बोलो, इन्नहु इन्नहुमा इन्नहुम इन्नहुमा इन्नहुन्ना इन्नका इन्नकुमा इन्नकुम इन्नका इन्नकुमा इन्नकुम इन्नकी इन्नकुमा इन्नकुन्ना इन्नकी इन्नकुमा इन्नकुम इन्नी इन्ना। इन्ना। हाँ चलो यहाँ पे आ गए। अब्बास के लिए क्या करें? इन्ना की गलत है, इन्ना का सही। अब यहाँ पे देखो, ऐ बेटी, क्या बोल रहे हैं? या बिनती, ऐ मेरी बेटी, ये आ रहा ना, ऐ मेरी बेटी। अब इन्ना का इन्नकी अब यहाँ पे क्या रहा? नहनु मुस्लिमूना, ठीक है? इन्ना हाँ, इन्ना मुस्लिमूना, ठीक है, समझ में आएगा। और यहाँ पे क्या होगा? वो इन्नी, हाँ बोलो, नोही वो बोलो, नोही वो पहले बोलो, नानो हम सब है मुसलमान। और यहाँ पे क्या आएगा? इन्नना इन्ना इन्ना हम सब के लिए ना, देखो यहाँ पे वाव आया तो बैलेंस होना, हम सब है मुसलमान और हम सब मोहब्बत करते हैं इस्लाम से। इन्ना के बजाय इन्ना भी बोल सकते हैं, इन्ना भी बोल सकते हैं। हाँ, आप पढ़िए। पढ़ो इन्नी इन्नी पढ़ेंगे, इन्नी भी पढ़ सकते हैं। इन्नी का मतलब क्या होगा? पढ़ो, मैं हूँ मुसलमानों में से। अब पढ़ो इन्नी अब्दुल्लाही, मैं हूँ अल्लाह का बंदा, बेशक मैं हूँ अल्लाह का बंदा। इन्ना माकुम, हाँ पढ़िए, बेशक हम हैं तुम्हारे साथ, बेशक हम सब तुम्हारे साथ है। बेशक हम हैं, इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह है सबर वालों के साथ। अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। हाँ, इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, बेशक यकीनन इस्लाम, दीन है, बोलो दीन है अल्लाह के पास इस्लाम। हाँ, इन्ना मा बोलो इन्ना मा बेशक हर परेशानी के साथ, बोलिए हर मुश्किल के साथ आसानियां है। मैंने आसानियां क्यों कहा भाई? आसानियां क्यों कहा बोलिए जरा, मेरे को तर्जुमा बताइए इसके अंदर। मैंने कहा बेशक, अल आ रहा ना, अल का मतलब क्या बेटा? एक खास। पढ़ो, बेशक माँ का मतलब साथ, बेशक एक मुसीबत के साथ ये नकीरा आ रही है, बहुत सारी आसानियां है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आप परेशान मत हो जाना, आपको हमने बड़े मुश्किलों में पैदा किए, तो आपकी आजमाइश होते रहेगी रोज, और एक परेशानी अल्लाह ताला देते हैं, उसके साथ आसानियां अनेक देते हैं, ये याद रखो। सर ये समझ में आया आपको? अल उसरा कलेक्टिव नाम है क्या?
नहीं सिंगल है, सिंगल है। एक आजमाइश, बोलिए एक आजमाइश, एक खास आजमाइश के साथ बहुत सारी बहुत सारी सहूलतें। सहूलतें। अल्लाह ताला अदल पसंद है। अल्लाह ताला जब आपकी आजमाइश करते हैं, एक परेशानी में आपको डालते हैं, लेकिन बाद में देखेंगे वो परेशानी को अगर आपने सब्र से, वही है क्या, कोई अपनी सूरह असर क्या है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाती। मतलब क्या है, बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान लाए, जिन्होंने सब्र किया, ऐसे परेशानियों में सब्र किया और लोगों को तलकीन की ईमान की। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है मुसलमान को ये समझना। क्या समझना है, मुसलमान लोग बहुत बार बोलते हैं क्या करूं यार, मेरे कोई परेशानी आ रही, क्या करूं यार, बहुत परेशान है। तो वो कुफ्र है। वो उससे बोलना चाहिए मेरी आजमाइश हो रही है, मैं पूरे सब्र के साथ में, हाँ, ईमान के साथ में अल्लाह पर भरोसा करके मैं उसका सामना करूंगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा है कुरान में, अगर मैं तुझे एक परेशानी दे रहा हूं और वो तो परेशानी को सब्र के साथ में फेस करता है, उसका मुकाबला करता है, वो सब्र का नतीजा जो मिलेगा आपको बहुत सारी सहूलतों से मिलेगा, और वो सहूलतें शहद से मीठी होगी। क्या होगा उसका रिजल्ट, क्या निकलेगा, शहद से मीठी। जब हमें रिजल्ट मिल जाता है तो हम भूल जाते हैं अल्लाह ताला। कभी कभी हमें देखिए बहुत बेहतरीन चीजें मिल जाती है, वो मिलने की वजह यह है कि बहुत मुश्किलों का हमने सामना करके बहुत अच्छी तरह से सब्र किया और ये कहा कि अल्लाह मुझे आजमा रहा है, और अल्लाह उसी को आजमाता है जो मोमिन है। चलो ठीक है, तो भाईजान आपको समझ में आया ये क्या है, एक है अब बोले तो खास परेशानी, और ये क्या है, सहूलतें। क्योंकि नकीरा की वसअत बड़ी होती है, मारिफा की वसअत कम होती है। दुनिया में आप कितने लोगों को जानते भाई, 6 अरब लोगों में से आप बहुत हो गया 60 लोगों को जानते हैं, तो मारिफा कम है, बाकी के सब क्या है, नकीरा। चलिए आगे पढ़िए, इल्ना, बोलो पढ़ो। इन्ना बिकुल्ली शैइन अलीम। हाँ, वो है जानने वाला, तमाम चीजों का आलिम है, हर चीज के जानने वाला। हाँ बोलो, इन्नल्लाही, हाँ इन्ना लिल्लाही आ गया, बोलो इन्ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ। ये कब पढ़ते, बोलो जरा मुझे बताइए। ये कोई चीज नुकसान, गुम गई या लाइट चली नुकसान, गई, कोई भी नुकसान में ये पढ़ना है, नुकसान। कोई मारा तो नहीं पढ़ना ये कोई भी चीज गुम जाए, कोई चीज की आपको याददाश्त नहीं आ रही है, लाइट चले जाए, कोई भी चीज नुकसान की चीज होती है तो ये पढ़े। क्योंकि हम अल्लाह के हैं, हम अल्लाह की प्रॉपर्टी है, और बेशक हम अल्लाह के तरफ ही लौटने वाले हैं। तो जो भी परेशानी है ये अल्लाह दे रहा है हमें। तो पढ़िए, इन्नल्लाहा खबीरुन बिमा तामलून। हाँ पढ़िए, मायने बोलिए। अल्लाह है जानता तुम जो अमल करते हो, बेशक अल्लाह जानता है तुम जो भी अमल करते हो। तो ये बेहतरीन चीजें मैं आपको दे रहा हूं, ये आपका काम है, इसको सेव करके रखो। चलिए और आगे चलेंगे। तो हमने फाइनल कर रहे, इसका खुलासा हो गया। इन्ना के बाद में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्लाह बन जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा, उसकी जगह लगा तो इन्ना हो जाएगा। चलिए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजों में जाएंगे अब हम। अब अन्ना आ गया। देखिए भाई, अन्ना का क्या तारीफा है बोलते हैं। हम बोलते हैं मैं शहादत देता हूं कि, अन्ना। पढ़ो बेटे, कोई पढ़ो, पढ़ के सुनाओ तो समझा। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। बेशक शहादत बेशक कहाँ है, बेशक कहाँ है, मैं शहादत देता हूँ शहादत मैं शहादत देता हूँ कि
के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हाँ आगे पढ़िए, कोई दूसरी पढ़िए। अब ये आपको नहीं पता है लेकिन सीन अलीफ लगा हुआ है ना, दिख रहा है ना, सा इज इक्वल टू विल और शैल। सुनो मेरी बात, सा लगाएंगे तो ये फ्यूचर टेंस हो जाएगा। सा अजहबु का मतलब मैं जाऊंगा, ठीक है, कल करे थे हमने ये। चलिए आगे चलेंगे। ये पूरे इन्ना के पूरे आप जरा एक बार पढ़ लीजिए, पूरे कल हो गए और आप जरा ये पढ़िए। चलिए इन्ना का पहला कोई पढ़े, एक पढ़े। इन्ना इन्नल्लाह मा साबिरीन, ये हो गया, ये पढ़िए। साबिरीन। हाँ ये भी हो गया। अशहदु अन्ना मोहम्मद, ये भी हो गया। कान्ना का पढ़ो भाई। कान्ना तिफलो, कमरुन। हाँ तिफला बन गया। गोया के लड़का है चांद के जैसा, चांद के मानिंद। कल हमने पढ़ा था सर इसको। जी जी जी। अब अगला पढ़िए। लाकिन्ना का पढ़ के सुनाइए जल्दी करिए। सादिकुन। इन्ना इन्नल कुराना बैनुन लाकिन्नल काफिरीना जाहिलून। जाहिलून। अब जरा बड़ी अच्छी इबारत में उर्दू में इसका तर्जुमा करके बताइए मुझे। इन्नल कुराना, बेशक कुरान, बैनुन लकिन्नल वाज़ेह है, बोलो बेशक कुरान एकदम वाज़ेह है, वाज़ेह है, लेकिन काफिर जमा काफिर जाहिल है। काफिरीन जाहिलूना, जाहिल है। लैता का पढ़िए। लैतल इस्लामा गालिबुन। हाँ इस्लाम गालिब हो जाता, गालिब हो जाता। इस्लाम गालिब हो जाता। लाला पढ़िए। लाला ज़ैदन सादिकुन, सादिकुन, शायद ज़ैद है सच्चा। तू पाएगा, तू पाएगा, तू पाएगा, तू पाएगा, तू पाएगा। अख्वातुन इन्ना, इन्ना की बहनें। हाँ तो अब कोई भी एक स्टूडेंट ये तमाम इबारतें पढ़ेंगे। चलिए कौन पढ़ेंगे? मर्द हजरात में से कोई पढ़िए। ज़ैदुन आलिमुन लकिन्ना बा इब्नहु लकिन्नबनहु जाहिलुन हाँ हाँ अर्रजुलु गनियुन। मायने बोलना है। ज़ैद है जानने वाला, आलिम है, लेकिन उसका उसका बेटा बेटा जाहिल है। हाँ, ये लाकिन का मतलब बिल्कुल इंग्लिश में हम बट लगाते ना, बट। Zaid is knowledgeable but his son is illiterate। हाँ अगली बात पढ़ी। अर्रजुलु गनियुन लकिन्नहु बखीलुन। हाँ एक आदमी गनी है, एक आदमी है पैसे वाला, लेकिन उन्हें कंजूस है। पैसे वाला आदमी आमतौर पर कंजूस होता है। हाँ चलिए अगली इबारत पढ़िए। वक्त हिसाबिन नासी करीब वक्त हिसाब, इंसानों के हिसाब का वक्त करीब है, लेकिन अक्सरहुम ज्यादातर उनमें से ज्यादातर लोग गाफिल है। आखिरत के अंदर इंसानों के हिसाब का वक्त करीब है, लेकिन उनमें से अक्सर लोग गाफिल है। इन्नल्लाह लज़ू फज़लिन अलन नासी वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यशकुरून।
بے شک ایک ایک اللہ اللہ ہے ضرور فضل والا ہے ہاں بہت لوگوں فضل پر والا رکو رکو لوگوں رکو پر رکو 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 یہاں پہ بے لام شک آ گیا یہاں پہ لام آ بولو بے شک بے شک اللہ اللہ ہے بہت بہت فضل فضل والا والا لوگوں ہاں پر اللہ لوگوں پر ناسی لوگوں پر لوگوں پر ولیکن لیکن اور اور لیکن اکثر لوگ اکثر لا لوگ یشکر شکر شکر نہیں نہیں ادا کرتے کرتے شکر نہیں کرتے ماشاء اللہ دیکھو کتنا اچھا رہا آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں چلو آگے کا پڑھیں لیس لیسا علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء ہاں نہیں لیسا ہے ابھی آپ کو نہیں ہوا لیسا مطلب ہے نہیں نہیں ہے ہاں تجھ پر آپ پر ہاں آپ پر ہاں ہداہم خدا ہم اس کی ہدایت ان کی ہدایت ہاں ان کی اور ہدایت اور اور لیکن لیکن اللہ 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 ہدایت دیتا ہے ہدایت جسے جسے چاہتا چاہتا ہے اللہ ہاں دیتا ہے آگے ہدایت جسے چاہتا ہے ان اللہ قادر ان اللہ قادر علی ان اس کا ینزل پڑھو اس کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھو بے شک اللہ ہے بے قادر شک اللہ قادر ہے علی ہاں پر پر ان ہاں ینزل ہاں جو کچھ وہ نازل کرتا ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے آیتن یعنی نشانی نشانیاں ولیکن اور اور لیکن لیکن اکثرهم اکثر ہم لا یعلمون لا یعلم نہیں جانتے ماشاء اللہ دیکھیے اب دیکھیے ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اگر پڑھنے کے لیے لوگ آ کر یہ سمجھتے ہیں تو دیکھو بہت سارے لوگ علم میں رکھتے ہیں کیونکہ یہ پڑھتے نہیں ہاں پڑھیے قل انما علمها عند اللہ کہہ دیجئے بے شک نہیں نہیں جو نہیں اب ذرا میں جو بتا رہا ہوں اس کے اوپر غور کیجیے اور لکھ کے رکھیے انا کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے یہاں پہ انما ہاں مان لگا تو اس کا معنی لگانا صرف کہہ دیجیے صرف علم اس کا علم اس صرف کا اس کا علم اس کا اللہ علم کے صرف پاس اللہ کے پاس ہے اللہ کے سمجھ پاس آپ پڑھیں گے سمجھ تو اس کو کیا بولتے ہیں ایکسکلوسیو کرنا اختصار جیسا بچے کو بولیں گے نا ہم نے کیک لائے دو بھائی ایک بہن ہے تو بڑے بچے کو بولے یہ صرف تیرے لیے بیٹا یہ صرف تیرے لیے تو بولو کہہ دیجیے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اور لیکن ولیکن اور اکثر لیکن لوگ اکثر الناسی اکثر لوگ زیادہ تر لوگ لا نہیں جانتے یعلمون نہیں جانتے جانتے تو آج کا نیا سیکھ کیا کوئی بولو آج کی نئی سیکھ کیا بھائی انما نحن مفلحون یاد ہے سورہ بقرہ میں آ گیا ہم تو صرف فلاح ان کے لیے بہتری جا رہے ہیں سمجھ آیا آپ کو کیا میں دیتا ہوں نہیں دیتا ہوں چلیے یہ ایک نئی چیز آ رہی ہے ذرا پڑھیے اس کو پڑھیے کیا لکھا لام تاکید ہاں انا تاکید ہے اور لام بھی تاکید ہے کل میں نے بتایا تھا دونوں کے معنی سیم ہے لام تاکید جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں لام ابتدا اگر شروع میں آتا ہے تو کیا بولتے ہیں لام ابتدا اس کو اردو میں پڑھیے انا تاکید اور لام تاکید اگر دونوں جملے میں ساتھ آ جاتے ہیں ہاں تو لام بھی استعمال ہوتا ہے ساتھ میں جیسے لام ابتدا کہتے ہیں لیکن لام ابتدا اگر پیچھے کی طرف ہٹ جاتا ہے تو اسے بولتے ہیں لام مزالحہ لیکن لام کے بارے میں کیا یاد رکھنا کہا تھا میں نے آپ کو کل بولی یاد آتا کیا آپ کو کل میں نے کچھ کہا تھا لام کے عامل بارے میں نہیں ہے ماشاء اللہ یہ لام ابتدا کیا ہے نسبی نہیں ہے انہیں نصب نہیں کرتا انا کیا ہے بھائی انا نسبی ہے یہ عامل نہیں ہے یہ عامل ہے ماشاء تو یہ بھی آپ کو یاد ہو گیا اور اب دیکھیے آپ کے لیے ڈیٹیل ہے یہاں پہ پڑھیے
अगर ताकत क्रिएट करना है जुमले में तो शुरू में लाम लगा दीजिए, जैसा ये क्या है, ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैद है नेक, ला ज़ैदुन सालिहुन, बेशक ज़ैद है नेक। ठीक है, तो ये लाम शुरू में आया तो इन्ना के मानिंद काम करता, लेकिन ज़ैदुन का ज़ैदन नहीं करता, बस इतना याद रखो। गैर मिल। नो चेंज, नो चेंज। चलिए अब यहाँ पे पूरा आ रहे थे, 4 सेंटेंस दे रहे हैं, ये चारों के लिख के रखिए, संभाल के रखिए। ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैद है नेक, ला ज़ैदुन सालिहुन, बेशक ज़ैद है नेक, इन्ना ज़ैदन सालिहुन, बेशक ज़ैद है नेक, इन्ना ज़ैदन लसालिहुन, बेशक ज़ैद है बहुत नेक, वल्लाही इन्ना ज़ैदन लसालिहुन, अल्लाह की कसम बेशक ज़ैद है बहुत नेक। इस तरह से आपको ताकत पैदा करने के उसलूब इस्तेमाल होते हैं। कल यहां तक पढ़े थे हम। अब आगे का देखिए, मैं आपको लाम ताकीद के बारे में फिर बताने लगा हूं। तो अगर लाम लगा देते हैं हम तो इन्ना नहीं आएगी, लेकिन इन्ना भी आ रही है तो लाम सब पीछे हट जाएगा, लेकिन इन्ना की ताकत ज्यादा है, इसलिए इन्ना अपनी जगह, बोलो इन्ना अपनी जगह लाम को हटा के पकड़ लेता है और लाम पीछे हट जाता है, तो इन्ना स्ट्रांग है। देखिए ये जो दिख रहा तराजो, इन्ना की ताकत ज्यादा है क्योंकि वो आमिल है, उसने इन्ना क्या करती है, लाम को ढकल देती है पीछे और लाम पीछे चले जाता है, और पीछे जाने वाले को क्या बोलेंगे हम, मुज़ालक़ा। चलिए और नई नई चीजें देखने लगे हम, ये लाम और इन्ना दोनों मिलकर देखेंगे हम। जरा पढ़ लीजिए आप यहाँ पे, हम देख चुके हैं लाम इब्तिदा। लाम इब्तिदा हम लगा के बोलेंगे, तेरा घर बेशक यकीनन तेरा घर है ज्यादा खूबसूरत, बोलो ला बैतुका अजमलु, बोलो चले गए सब लोग। बेशक तेरा घर है खूबसूरत। नहीं सर, है ना, दिखाए वो स्क्रीन छोटा है ना। ये अजमलो जो आता है ना बेटे, अजमलो जो आता है ना, इसके बारे में लिखता हूं। जमील का क्या बना, अजमलो क्या है, वो ओरिजिनल क्या है, सिफत क्या है, जमीलुन, जमील। लेकिन इसको अगर कंपैरेटिव वर्ड बनाना है तो क्या बनेगा, अजमल। अजमलो। पढ़िए, तो यहाँ पे क्या है, अजमल वाला, तो क्या पढ़ेंगे, बेशक तेरा घर है ज्यादा खूबसूरत, किसी से ज्यादा खूबसूरत। अब पढ़िए, इन्ना बैतुका ला जमीलो ला अजमलो, बोलो बेशक तेरा घर है बहुत ज्यादा खूबसूरत। समझ में आएगा ना आपको? बेशक तेरा घर बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हाँ माशाल्लाह। कंपैरेटिव वर्ड है, जैसा इंग्लिश में पढ़ते हैं ना अपन, गुड बेटर बेस्ट, तो बेटर की एग्जांपल है अजमलो। हाँ यहाँ पढ़िए, अब जरा फ्लोटिंग लाम के बारे में, मुज़ालक़ा के बारे में पढ़िए। इन्ना ज़ैदन ला तबीबुन, तो पहले क्या था मालूम क्या, ज़ैदन तबीबुन था, उसके बाद लगा अपने ला ज़ैदुन तबीबुन, तो इन्ना आ गई वापस, इन्ना आते बेचारा लाम पीछे हट गया और यहाँ पे इन्ना ने उसकी जगह खाबिज कर ली, इन्ना ज़ैदन ला तबीबुन, तो क्या बोलेंगे, बेशक ज़ैद है बड़ा ही अच्छा डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर। बड़ा डॉक्टर। इन्नका लिमिनल मुरसलीन, देखो इन्नका आ गया था, कहाँ बोले तो क्या है, तू, कहाँ बोले तो तू, बेशक तो, बेशक तो बिल्कुल यकीनन रसूलों में से है। अब ये पढ़िए, इन्ना लेबरा, ये भी पढ़े ना, तो इन्ना कल बताया था, तो इसको क्या बोलेंगे, नाम क्या है, लामे मुज़ालक़ा। तो जब भी इन्ना आएंगे तो लाम साहब क्या करेंगे, पीछे भाग जाएगा, इन्ना आए कि लाम भाग जाता, इन्ना आए कि गया, लेकिन ये डबल सिस्टम है। ठीक है, यह भी समझ में आ गया आपके। चलो एक बार पढ़िए, अल वलदु सालिहुन, मायने बोलिए, लड़का है नेक। अब इन्ना दाखिल कीजिए,
इन्नल वालदा सालिहुन का है नहीं अब ये पढ़िए, अल वलदानी सालिहानी, 2 लड़के हैं दो नेक, लड़के हैं इन्ना नेक दाखिल लड़के हैं कीजिए। नेक, बेशक हाँ, दो इन्ना लड़के हैं नेक, बेशक दोनों लड़के नेक हैं बेशक दोनों हैं देखो वलदानी क्या बन गया, वलदैनी, ये याद रखो। यहाँ पढ़िए, अल मुस्लिमूना सादिकूना, ऊना क्या बनेगा, मुस्लिमीन। जमा तमाम मुसलमान ये कब कब खाया था सुनो, टाइमिंग भी होता है उसका। हाँ देखिए यहाँ पे पढ़िए, वल अस्री, वाव लगाए तो खस्मिया है अस्री, इन्नल इंसान लफी खुस्र, ना क्या बात वॉइस। चलिए अब आपकी बारी है। जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करने के मुख्तलिफ मुजालखा के जुमले हैं, पढ़िए। पहला कौन पढ़ेंगे, तर्जुमा भी लिखा है मैंने, पढ़ो। इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप मुरसलीन में से, रसूलों में से हैं। हाँ चलिए आगे पढ़िए, इन्नल अबरारा इन्नल अबरारा लफी नईम, हाँ बेशक नेकोकार, बेशक नेकोकार है, हाँ नेमतों में, बेशक नेकोकार होंगे नेमतों में। नेमतों में, हाँ चलिए, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान है बहुत खसारे में। खसारे में। हाँ इन्ना रब्बिल, इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, बेशक मेरा रब बहुत सुनने बेशक वाला मेरा है रब दुआ। दुआओं को सुनने वाला, जरूर दुआ। आगे पढ़िए, इन्नल्लाहा लसमीउन अलीमुन, बेशक अल्लाह बहुत सुनने वाला है और जानने वाला है। वाला और खूब जानने वाला। इन्नल इन्ना हाज़ल लहु लहुवल अल क़ससुल हक़्क़ु, बेशक बेशक ये बेशक ये अलबत्ता ये सच्चा ये किस्सा बहुत सच्चा हिस्सा है। शख्स हाँ इन्नल मुनाफिकीना मुनाफिकीना लकाज़िबून, लकाज़िबूना, बेशक मुनाफिकीन बेशक मुनाफिकीन बहुत झूठे हैं। अलबत्ता बहुत झूठे झूठे हैं। हैं। बहुत झूठे हैं, बहुत झूठे हैं। सर अलबत्ता भी यूज कर सकते हैं, बहुत भी यूज कर सकते अब देखो बेटे, इतनी फसी उर्दू हम कभी बोलते क्या? हाँ, हैं। अच्छा हाँ तो जो बोलते हो वो अपन इस्तेमाल करेंगे। ठीक। हाँ अब जरा यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए। माँ और इल्ला का इस्तेमाल, क्या क्या है, माँ के बाद इल्ला आ रहा है, क्या आ रहा है, जरा पढ़िए। माँ और इल्ला आ रहा है तो क्या होगा, पढ़िए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, एक रसूल के अलावा कुछ भी। हाँ तो क्या कैसा पढ़ेंगे, मोहम्मद। हाँ तो इसका पढ़ने का तरीका क्या है, नहीं है मोहम्मद बल्कि एक रसूल, नहीं है मोहम्मद मगर एक रसूल। हाँ हाँ नहीं है हमारे, नहीं है हमारे जिम्मा मगर साफ साफ पहुंचा देना, यानी कि हमारा काम है, बलागा का मतलब है मैसेज को फॉरवर्ड करने वाला। पढ़िए, मा यअतीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, नहीं आता उनके पास कोई भी रसूल मगर उसका मजाक उड़ाते हैं। हाँ उनके पास कोई रसूल नहीं आता मगर वो क्या करते हैं, उसका काज़िबुन यानी छट्टा करते हैं उसका, मजाक उड़ा। तो ये आपका नया सबक है, ये नोट करना है, कल आप फिर देखेंगे इसके अंदर। तो माँ और इल्ला आया तो इनकार से शुरू करना, बात करना, नहीं है मगर, नहीं है मगर, नहीं है के बाद जो इस्म आएगा उसका तर्जुमा करना और आगे मगर लगा। अब ये एक नया सबक आ रहा है, इल्ला का असर खत्म करने के लिए एक माँ ऐड किया जाता है।
बोलो फिर से, क्या बोला मैंने? इन्ना क्या काम इन्ना करता का है भाई? असर नसब खत्म का। करने के लिए मार कर दिया। हाँ, तो इन्ना क्या करता? अपने बाजू के इसम को नसब देता। लेकिन अगर उसके अंदर का जहर खत्म करना है, नसब खत्म करना है, तो उसके साथ माँ लगा दीजिए। पढ़िए, उर्दू में पढ़िए। इन्ना व अख्वातुहा के अंदर क्या लगाना है? इन्ना और माँ लगाना है। इन्ना और माँ लगाना। हाँ, हर शब्बात तेल के साथ माँ जायदा, माँ जायदा, एक्स्ट्रा माँ है ये। और ये माँ के कोई मायने नहीं है बेटा, ये माँ के कोई मायने नहीं है। लेकिन क्या करेगा ये माँ? सामने वाले के इसमें जो आता है उसको नसब में जाने नहीं देगा। यानी इन्ना को गैर आमिल कर देंगे। जी 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 जी। अब जरा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, गौर से देखिए। इन्नमा के बाद अंतारा, अंता तो मुनफसिल ज़मीर है ना, कहा आना चाहिए। याद है ना आपको? इन्नका, इन्नकुमा, इन्नकुम आता है। लेकिन इन्ना के बाद क्या आ रहा? अंता आ रहा। वो तब्दील नहीं हुई जमीर, मुनफसिल जमीर इस्तेमाल हो रही। देखो, इन्नमा अंता मुज़क्किर, समझ में आया? यहाँ देखिए, इन्ना में बाद नहनु आ रहा, नहनु नहीं आना, ना आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये कट जाएगा। अगर माँ नहीं होता तो क्या होता था? ये कट जाता था और नौनु की जगह क्या आता था? ना, इन्ना। लेकिन ये माँ ने क्या करा? प्रोटेक्ट कर दिया उसको। माँ क्या कर रहा? उसको प्रोटेक्शन दे रहा। और ये नहनु आता, इन्नमा नहनु। तो आपको किसी ने बोला भाई इन्ना के बाद तो जो भी जमायर होते हैं वो मुत्तसिल बन जाते हैं, लेकिन यहाँ तो बनाने के बाद है भाई बोलना, ये माँ जो है ना इसका प्रोटेक्शन कर रहा। माँ क्या कर रहा? उसका हिफाजत कर रहा, उसको नसब में जाने नहीं दे रहा। आप बात समझ में आई? जी सर। भी चीज के लिए लिखा है। चलो ये भी एक आपका लेसन हुआ है। अब ये देखिए क्या है, जरा गौर से देखिए। जुमले इस्मिया में ताकीद का अंदाजा बनाना। कैसा बनाना है भाई? देखिए, जुमले इस्मिया में क्या क्या होता है मुझे बताइए। दो टुकड़े क्या होते हैं? दो। पहला होता है मुब्तदा, पहला मारफा और होता है। दूसरा पहला मारिफा। शाबाश शाबाश। पहला क्या होता है? मारिफा होता है और रफा हालत में होता है। और दूसरा क्या होता है? नकीरा होता है। एक मुफरद है तो नकीरा होना चाहिए। तो हम इसको निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? सब निकाल। बोलो अल्लाह हो, बोलो अल्लाह हो, है ना? अल्लाह है बहुत माफ करने वाले। लेकिन अगर इसमें ताकत पैदा करना है, बहुत ही ज्यादा ताकत पैदा करना है, तो इसको एक तरीका है। इसका तरीका ये है कि पहले इसको मारिफा बना। देखो आगे अल आ गया, अल गफूर हो गया, और इसके दरमियान में एक क्या करो मालूम क्या? एक मुनफसिल जमीर डाल दो। बोलो अल्लाह हो वल गफूर। पढ़ो अल्लाह हुवल गफूर। मतलब है अल्लाह ही गफूर, माफ करने वाला। दूसरा दुनिया में कोई नहीं है माफ करने वाला। सर ये हुआ मुब्तदा सानी है क्या सर? हुआ मुब्तदा सानी? नहीं बेटा, ये इसको बोलते हैं मजबूर। इसका नाम लिखता हूं, आप लिख लीजिए। ज़मीर ए फस्ल, क्या बोलते हैं इसको? ज़मीर फस्ल क्यों लाए भाई? कि इसके अंदर ताकत पैदा करना है, तो हु लाए बाद इसको मारिफा करना जरूरी है। दो मारिफा आ जाते हैं, बीच में ज़मीर फस्ल आ जाती है। देखो इन्नल का वो खाली बोलो अल काफिरूना, हाँ जालिमूना होना। क्या होना था? ये निकाले तो क्या होगा? जालिमूना। बोलो काफिर है, काफिर है जालिम। बोलो अब क्या बनाना है आपने? बोलो काफिर, बोलो काफिर साहब उन्हों ही तो जालिम है। काफिर वही तो जालिम है। बनाने के लिए ज़मीर फस्ल लाके इसको क्या करना पड़ेगा? सेकंड स्टेप क्या करना पड़ेंगे? इसको मारना है। समझ गए आपको? इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिखिए। अब बोलो अल कुरान हक़्क़ुन। बोलो अल कुरान हक़्क़ुन। अब इसके अंदर बोला कुरान ही तो है। हाँ बोलो अल कुरान हुवल हक़्क़ुन।
قرآن قرآن ہی حق ہے. ہے تو ہاں اب بولو زیدن صالح صادقون، بولو زیدن صادقون، زید ہے سچا. ارے زید تو ہے سچا، بنا زیدن هو الصادقون. آیا سمجھ میں؟ اس کو کل میں لینے والے، آج آپ ذرا اس کو میں آپ کو اوپن کر رہا ہوں ایک منٹ. اس کے ایگزامپل لے لیتا ہوں، پھر اپن آگے حافظ صاحب کو لے لیں گے. یہ پورے اپنے کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑیں گے تاکہ آپ کو اس کے اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، میں ابھی ذرا زیادہ ایگزامپل لے لیتا ہوں، ختم کر. ٹھیک ہے، میں کل دیکھ کے اور بھی میں ایگزامپل کل دیکھ کے لاتا ہوں. تو آپ کو یہ ضمیر فصل کی ابھی پریکٹس کرانا ہے مجھے. تو ضمیر فصل ہمیشہ آیت کے خاتمے پہ ضرور آتی ہے. وہ ڈراپ ہو گیا، میں نے لکھتے رہ گئی، وہ کل لاتا ہوں. ٹھیک ہے، چلیے میں یہاں پہ رکتا ہوں، اب سب کو دے دوں. تو کل انا اور اس کے پورے بہنوں کا حصہ تمام ہو جائے گا، اور پھر ہم پرسوں سے یعنی اگلے ہفتے ہم فعل الماضی شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیادہ ہوگا. جملہ اسمیہ، ایسا جملہ جس کی شروعات اسم سے ہو اسے جملہ اسمیہ کہیں گے. زید صالح، یہ دو لفظ ہے، دونوں بھی اسم ہیں، اور اگر دونوں کا ڈی آئی این جی نکالے تو پہلا والا اسم ملے گا معرفہ اور دوسرا والا اسم ملے گا نکرہ. تو زید صالح، زید معرفہ ہے اور صالح نکرہ ہے. معرفہ کے بعد جب نکرہ اسم آتا تو دونوں مل کے جملہ اسمیہ بنتا. اور جملہ اسمیہ کے دو اہم جز ہے، وہ کون سے؟ مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر. ایک لفظی جملہ اسمیہ یعنی کہ سنگل ورڈ، مفرد اسم کا جملہ اسمیہ. پہلا والا مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہونا چاہیے. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہونا چاہیے، لیکن
मुब्तदा के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती, कौन से इस्म है जो मुब्तदा बन सकते? मुब्तदा मारिफा होना, और कौन से इस्म है जो मुब्तदा बन सकते? हमने शुरुआत में एक लिस्ट पढ़े थे, इस्म की वुसात के एतबार से दो किस्में हैं, एक मारिफा है और दूसरा नकीरा है। नकीरा की पहचान है तनवीन, जैसे यहाँ पे है, और मारिफा की पहचान है अलिफ लाम। और इसमें मारिफा की टोटल 7 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। और वो 7 किस्में कौन सी है? इसमें अलम, इसमें अलम, मुअर्रबिल्लाम, इसमें जमीर, मुअर्रब बिल लाम, इसमें इशारा, हर्फ निदा, हर्फ निदा, इसमें इशारा, मुजाफ, इसमें मौसूला, मुजाफ, इसमें मुजाफ, हरफ निदा, हरफ निदा नहीं, इसमें मुनादा। हरफ निदा तो या है, जिसको पुकारा गया उसको बोलेंगे मुनादा, तो इसमें मुनादा। इसमें मुनादा, इसमें अलम, इसमें जमीर, मुअर्रब बिल लाम, इसमें इशारा, इसमें मौसूला, इसमें मुजाफ और इसमें मुनादा। ये तमाम के तमाम इस्म जो है, ये तमाम के तमाम अस्मा मारिफा है। ये मारिफा की 7 किस्मों में से है। इसमें अलम, इसमें जमीर, जमायर कितने हैं? 14। 14 है, 14 जमायर है। मुअर्रब बिल लाम यानी कि ऐसा इस्म जिसके शुरुआत में अलिफ लाम लगा हुआ हो। इसमें इशारा की तादाद कितनी है? 6, 6 है। 6। आधा बालिका उनका इसमें मौसूला, अल्लज़ीन अल्लज़ा, इसमें मुजाफ, अखफ क्या हुआ इसमें, मुदाफिल, इसमें 2 ही हैं। और इसमें मुनादा, अखफ क्या हुआ इसमें। खफ किया हुआ है। तो जुमला इस्मिया एक लफ्जी है जिसके अंदर पहला है मुब्तदा, और मुब्तदा हमेशा मारिफा होना चाहिए एक लफ्जी जुमले में। तो मारिफा होना चाहिए, तो कौन से इस्म है जो मुब्तदा बन सकते? अब इसमें मारिफा की हमारे पास 7 किस्में हैं। इसमें अलम है, जमीर है, अलिफ लाम के साथ मारिफा है, इसमें इशारा है, इसमें मौसूला है, इसमें मुजाफ है और इसमें मुनादा है। तो इन तमाम इसमें मारिफा के अंदर से इसमें मौसूला, इसमें मुजाफ और इसमें मुनादा, ये तीनों इस्म को छोड़ के बाकी के चारों इस्म भी मुब्तदा बन सकते। इसमें मारिफा की टोटल 7 किस्में हैं। इसमें अलम यानी कि रखा हुआ नाम, इसमें जमीर यानी कि इस्म की जगह पे इस्तेमाल होने वाला नाम, और मारिफा मुअर्रब बिल लाम यानी कि किसी इस्म को अलिफ लाम लगा के उसको मारिफा बनाया गया। आवाज आ रही मेरी? जी ठीक है। जी सर आ रही है। जी। जी सर आ रही है। मुअर्रब बिल लाम यानी कि ऐसा इस्म जिसके शुरुआत में अलिफ लाम लगा के उसको मारिफा बनाया गया, और इसमें इशारा यानी कि इशारा करके बताने वाला नाम, और इसमें मौसूला, 2 लफ्जों को आपस में जोड़ने वाला, किसी की तारीफ बयान करने वाला नाम, इसमें मौसूला। इसमें मुजाफ यानी कि अखफ किया हुआ नाम, ना अलिफ लाम और ना तनवीन, और आखिरी में है इसमें मुनादा। इसमें मुनादा भी इस्म होता, वो भी अखफ किया हुआ, जिसके ऊपर भी ना अलिफ लाम आती और ना ही तनवीन आती। तो इसमें मौसूला, इसमें मुजाफ और इसमें मुनादा, ये 3 नाम, ये 3 इस्म के अलावा बाकी के जो 4 इस्म है वो मुब्तदा बन सकते। इसमें अलम भी मुब्तदा बन सकता, इसमें जमीर भी मुब्तदा बन सकता, अलिफ लाम के साथ मारिफा वाला इस्म भी मुब्तदा बन सकता, और
اس میں اشارہ بھی مبتدا بن سکتا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. جی سر جی. جی سر سمجھ گئے. جملہ اسمیہ، ایک لفظی جملہ اسمیہ جس کی مثال ہم نے لیے تھے زیدن زید صالح. صالح. زیدن معرفہ ہے اور جملہ اسمیہ کے دو جز ہے. پہلا والا رہے گا مبتدا اور دوسرا والا خبر. خبر. مبتدا کیا ہونا؟ معرفہ ہونا اور خبر نکیرہ. نکیرہ ہونا. اب مبتدا معرفہ ہونا تو مبتدا کے اندر کون سے اسم استعمال کیے جا سکتے؟ کون سے اسم ہیں جو مبتدا بن سکتے؟ اس میں معرفہ کی ہمارے پاس 7 قسمیں کی، جس میں سے ہم نے 4 3 ہیں. دیے. تو بچے کتنے؟ اس میں علم بچا، اس میں علم، ضمیر، اس میں ضمیر بچا، اشارہ بچا اور ال والا اس میں اور الف لام کے ساتھ معرفہ بچا، یعنی کہ معرب باللام. یہ 4 اسم ہیں جو جملہ اسمیہ میں مبتدا بن سکتے. زیدن صالح، زیدن مبتدا ہے، معرفہ ہے. تو کیوں معرفہ ہے انہیں؟ کیونکہ یہ اس میں علم ہے. اس میں علم ہے. اور اگر اس میں اشارہ کے ساتھ بنانا ہے، زید کھڑا ہوا ہے اور اس کی طرف ہم اشارہ کر کے بتا رہے ہیں، تو زید کے لیے کون سا اس میں اشارہ استعمال ہوگا؟ نزدیک کھڑا ہوا ہے، تازہ. تو خاصا. صالح. اس کے لیے کیا آئے گا؟ ہذا صالح. زید غائب ہے، کہیں دور ہے، اور اس کا نام لیے بغیر اس کا بتانا ہے کہ وہ نیک ہے. ہوا صالح. اور الف لام کے ساتھ معرفہ تو زید کے ساتھ نہیں آتا. تو 3 چیزیں کیا مل گئی؟ پہلا اس میں علم، دوسرا اس میں اشارہ، تیسرا اس میں ضمیر. یہ 3 اور چوتھا ہے معرفہ الف لام کے ساتھ والا بھی مبتدا بن سکتا. یہی آج کا سبق ہے. اور زید کو اگر زید آدمی ہے، لڑکا ہے، جو بھی ہے لڑکا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے لفظ؟ الولد صالح. تو اس میں علم ہو گیا، اس میں اشارہ ہو گیا، اس میں ضمیر ہو گیا اور معرب باللام ہو گیا. یہ چاروں بھی مبتدا بن سکتے. سمجھ میں آیا؟ جی سر. جی ایزی. جملہ اسمیہ سر. میں 2 جز ہے، پہلا مبتدا اور دوسرا خبر. مبتدا ایک لفظی جملے میں ہمیشہ معرفہ ہونا اور خبر ہونا نکیرہ. تو مبتدا معرفہ ہونا تو معرفہ میں کون سے اسم ہے جو مبتدا بن سکتے؟ پہلا ہے اس میں علم، دوسرا اس میں اشارہ، اس میں ضمیر اور معرب باللام. ٹھیک ہے؟ تو یہی آج کا سبق ہے، یہی سبق آج کا یاد رکھیے. بہت دیر کرو روزانہ. دیر تو یہ 4 اسم ہیں جو مبتدا بن سکتے. تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے، یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے. اور جو ہوم ورک آپ لوگوں نے کیے، جو جملہ اسمیہ ایک لفظی جو آپ لوگوں نے قرآن میں سے نکالے، وہ ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں لیں گے. ٹھیک ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے سر. چلیے آج یہاں پہ رکیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم